So hello everyone, welcome to Genic Education. Okay, so in this series of transformer lectures, we have already covered the very important part regarding the single phase transformer. Okay, so let me summarize what we have discussed so far. As engineering service point of view, so we started with the basics of transformer. Also we discussed the constructional details of the transformer, and also we discussed the equivalent circuit of the transformer. Then we tried to discuss the performance indices of the transformer. That is, performance indices means the efficiency and voltage regulation. So already I told you in case of your ideal transformer, the efficiency is 100% because losses is 0. Because losses is 0, ideal means losses in the system is 0. So efficiency will be 100%, correct? Now come to the another thing. The another thing is the fluctuation in the voltage. I am telling about the load voltage. Okay, so load voltage will be fluctuating. How? When the load voltage depends upon the load current. Okay, load voltage depends upon the load current. It depends upon the load. But if it is an ideal transformer, it is independent of the load. Okay, whatever is the load amount, the load voltage will remain fixed. Why? From the KVL, we already analyzed that some drop in the transformer will be there. In case of practical transformer, some drop in the transformer will be there. So I will be getting a output voltage which will be lesser than, not lesser or more, it will be both lesser and more, but it will be keep on fluctuating depending upon the load. Why? Because there is a drop in the transformer. अगर load बढ़ेगा, load current बढ़ेगा and fluctuation बढ़ेगा. Fluctuation अगर change होगा, voltage regulation change होगा. Okay. So we discussed the voltage regulation of the transformer. Also we discussed the losses inside the transformer. Those are hysteresis losses, copper hysteresis losses, eddy current losses and copper losses. Also we discussed the why eddy current losses happens, how eddy current losses, how hysteresis loss happens, that's also we discussed. And another thing, we discussed the copper losses, which is very simple. And next thing, we also discussed the testing of the transformer. So why we should study the testing? Why we should study the testing? Because testing means testing always gives the result of the losses, that is the constant losses. Constant losses means the constant losses means the iron loss inside the transformer. Okay, and the short circuit test gives the result of the copper losses. Okay, how to perform the open circuit test, how to perform the short circuit test, everything we have already discussed in a neat way. Now come to the next topic, that is, in many times in gate classes, normally for gate classes students ignore, but I am stressing a point here. For engineering service, this you should focus this topic only, this topic also. So which is that topic? Let me write here. That is very important topic, and यहाँ पे बहुत सारे students का doubt होता है normally बहुत सारे students का doubt होते हैं. And also I have asked you a question in the lecture 2 or 3, I think lecture 2 or 3 I asked you a question regarding this concept. So अभी आपका बहुत अच्छे से concept clear हो जाएगा, ठीक है. This is a very important concept. So concept का base क्या है, let's discuss first. So ideal transformer में हम बहुत सारे चीज डिस्कस किए थे, and additional point is that another extra point is that this is the excitation. See, this is the BH characteristic. This BH characteristic is given by, this one is H, this one is B, or you can say phi
or this is the excitation current or magnetizing current. Suppose it is magnetizing current. So in case of your ideal transformer, the BH curve is linear one. Okay, this one is linear. But in case of practical transformer, already we have discussed, in case of practical transformer, the core is having some finite permeability. It is having some finite permeability, and the nature of BH curve already we have discussed. क्या होता है? This is looking like this one. This is the BH curve, और इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस कर्व. हिस्टेरेसिस कर्व. एंड यही हिस्टेरेसिस कर्व से आपका हिस्टेरेसिस लॉसेस आता है, एंड दैट इज नथिंग बट हिस्टेरेसिस लॉसेस पर साइकिल इज नथिंग बट एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस कर्व. राइट डाउन. हिस्टेरेसिस लॉस per cycle is equal to how much? Area under the hysteresis curve. Area under the hysteresis curve. Are you getting my point? All of you are getting my point? So write down this one. This is the hysteresis curve for a practical. This is the BH curve. BH curve for a practical transformer. Practical transformer का BH curve यही है. Okay. So we have to study this deviation. In the ideal transformer, we considered BH curve as linear, but in the practical transformer, the BH curve is different. That is called your hysteresis loop. And why this curve is coming, we'll discuss. Hold on. So write down the next heading. The heading is non-linearities in transformer. Non-linearities in transformer. नॉन-लिनियरिटीज इन ट्रांसफार्मर. यहाँ पे आपका एक्साइटेशन करंट है, सॉरी मैग्नेटाइजिंग करंट है, एंड यहाँ पे फ्लक्स है. सो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप डायरेक्टली ये वीडियोस देख रहे हैं तो आई विल रिकमेंड यू टू गो थ्रू द लॉसेस कंसेप्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर. वहीं पे आप जाके फिर से देख सकते हैं. ठीक है, बहुत अच्छे से हम कंसेप्ट डिस्कस किए थे. What is coercivity? What is retentivity? So let me discuss it briefly again. So you can observe one thing. When the already I am supplying a excitation current which is sinusoidal. I am applying, suppose this is a core of a transformer. This is the core of a transformer. And here is the winding. I am supplying here the voltage. I am exciting the winding, correct? So if this is sinusoidal, the excitation current will be upward sinusoidal. It will be upward sinusoidal. So it will be sinusoidal. So you can see here the sinusoidal means this is increasing, decreasing, increasing. Okay, so first of all, this excitation current will produce flux inside the core of the transformer. So what will be the nature of flux inside the core of the transformer? What will be the shape of
flux inside the core of the transformer. The magnetizing current is sinusoidal, but what will be the shape of flux inside the transformer? So अगर इस यही कर्व से हम ट्रेस करेंगे, सी ये पॉइंट मान लो ये है आपका O पॉइंट है, O पॉइंट में एक्साइटेशन करंट क्या है, सी आई म्यू क्या है, जीरो है, फ्लक्स क्या है, जीरो है, जीरो है, ठीक है। अभी क्या हुआ आपका एक्साइटेशन करंट, जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी वी नो दैट एक्साइटेशन करंट का वेवफॉर्म क्या होगा, लीव इट। सो एक्साइटेशन करंट इज हाउ मच, एक्साइटेशन करंट क्या है यहां पे, साइनोसोइडल है। सो अगर ये पॉइंट पे आप जाएंगे, सपोज दिस वन इज ए पॉइंट, सो ए पॉइंट में ओबियसली यहां पे ये थोड़ा कर्व थोड़ा सा ये होना चाहिए डिक्रीजिंग, ठीक है, ये ऊपर नहीं जाएगा, डायरेक्टली नीचे आएगा क्योंकि यहां पे डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये ए पॉइंट में आई म्यू मैक्सिमम है, फाई मैक्सिमम है। तो यहां पे क्या हुआ आपका एक्साइटेशन करंट एंड फ्लक्स दोनों इंक्रीज होते गया एंड मैक्सिमम पॉइंट सेम टाइम में पहुंचा। लेकिन जब डीमैग्नेटाइज हुआ तब क्या हुआ, रेट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन कम है। ऑलरेडी ये चीज हम बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, रेट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन लेस as compared to rate of magnetization. So I will be getting a net residual flux. Residual flux meaning when the excitation, when the magnetizing current in the transformer is zero, but still I am getting some flux. This is the flux OB. This OB. See at B you can observe here the I mu is zero, but I am getting some amount of flux. Is it correct or not? I am getting some amount of flux. This is called retentivity. This is called retentivity. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? जब मैग्नेटाइज हो रहा था, पहली बार जब मैग्नेटाइज हो रहा था, क्या हुआ? दोनों साथ में चले, मतलब प्रोपोर्शनली आई म्यू एंड फाई इंक्रीज कर रहा था एंड उसका मैक्सिमम भी एक ही साथ पहुंच गया। लेकिन जब डीमैग्नेटाइजेशन स्टार्ट हुआ, रेट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन इज स्लोअर। सो क्या हुआ, जब आई म्यू जीरो हुआ लेकिन फ्लक्स इनसाइड द कोर इज नॉट जीरो, फ्लक्स इनसाइड द कोर इज नॉट जीरो, ओके। उसके बाद क्या होगा, आई म्यू सी ओ ए बाद में ये आई मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा, डिक्रीज करने लगा क्योंकि ये प्योर साइनोसोइडल है। सो डिक्रीज अगर करने लगेगा तो ये क्या होगा, इट विल बी डीमैग्नेटाइज, इट विल स्टार्ट डीमैग्नेटाइज। सो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा करंट हम अप्लाई करेंगे, तब जाके एक्स्ट्रा करंट और एक्स्ट्रा फोर्स हम अप्लाई करेंगे, तब जाके फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर विल बी जीरो, ओ ए बी सी, ओके। फ्लक्स इन द एट दिस पॉइंट एट सी क्या होगा, इट विल बी जीरो। उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम सी टू डी अगेन इट विल स्टार्ट मैग्नेटाइजिंग बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट विल स्टार्ट मैग्नेटाइजिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे हुआ, फाई पहले क्या था, पॉजिटिव था, अभी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मीनिंग क्या है, इट विल बी मैग्नेटाइजिंग बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मान लो पहले लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट था, किसका, डाइपोल का, अभी क्या होगा, राइट टू लेफ्ट अलाइन होगा, किसका, डाइपोल का। सी ये जो कंसेप्ट है प्योरली थ्योरेटिकल है, थोड़ा पेशेंस में इसको समझना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा एंड उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आपको थोड़ा सा पेशेंस में सुनना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑल न्यूमेरिकल्स। सो इतना क्लैरिटी बहुत जल्दी नहीं आएगा, ओके। नाउ सो यहां पे क्या होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन फिर से मैग्नेटाइज होगा, सिमिलरली ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, करेक्ट। लेकिन यहां पे आप क्लियरली एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब फ्लक्स जीरो है, सॉरी मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो है, तब फ्लक्स का वैल्यू नॉन जीरो है।
See, in your transformer, the shape of EMF should be, what should be the what should be the shape of EMF? The shape of EMF must be sinusoidal. Am I correct or not? So if the shape of EMF is sinusoidal, we know that E is equal to n d phi by dt. Correct? So phi will be how much? 1 by n इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी. सो अगर ये साइनोसोडल है, ऑब्वियसली फ्लक्स क्या आएगा? साइनोसोडल आएगा. करेक्ट? सम फेज शिफ्टिंग विल बी देयर, आई एग्री, बट इट विल अगेन बी साइनोसोडल. इट विल बी साइनोसोडल. But in this case, so in order to get the sinusoidal EMF, I must have a sinusoidal flux. Okay, our target is to get sinusoidal EMF, but the prerequisite condition is I must have an sinusoidal flux wave. This is the condition. Our target is to get sinusoidal EMF, but the flux must be sinusoidal, otherwise it is not at all possible. But let's see. Here the magnetizing current is sinusoidal, but now trace the curve. What will be the shape of flux? Starting क्या होगा? I mu मैग्नेटाइजिंग है. उसके बाद क्या होगा? I mu अगर बढ़ेगा, सी स्टार्टिंग में जीरो पे था, उसके बाद क्या होगा? I mu अगर बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा. ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा? इट विल सैचुरेट. तो सैचुरेट अगर हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हो रहा है? ये इंक्रीज नहीं होगा. उसके बाद क्या होगा? डीमैग्नेटाइजेशन होगा. ओके, सो the waveform of flux is how much? What is the shape of what is the shape of flux waveform? It is trapezoidal. It is trapezoidal in shape. The shape of flux waveform is trapezoidal. Agreed? So मेरा टारगेट था टू प्रोड्यूस साइनोसोइडल EMF. ओके, लेकिन यहां पे क्या रहा है? साइनोसोइडल फ्लक्स नहीं. कंडीशन क्या होना चाहिए? साइनोसोइडल फ्लक्स होना चाहिए. लेकिन यहां पे फ्लक्स का वेवफॉर्म क्या है? ट्रापेजोइडल है. तो ऑब्वियसली इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, E इज इक्वल टू एन डी फाई डी टी करेंगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली इट विल नॉट बी साइनोसोइडल, इट विल बी सम अदर शेप. अदर शेप मतलब वो पीकी आता है. लेट मी टेल यू, वो पीकी वेवफॉर्म आता है. ओके, सो आप लोग अच्छे से फोरियर सीरीज पढ़े होंगे, तो यू कैन टेल मी यहाँ पे जो फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन आएगा along with the fundamental the odd harmonics will be there. सो यहाँ पे odd harmonic क्यों आएगा? क्योंकि ये सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है. दैट टू ये हाफ वेव सिमेट्रिकल ना, आप पढ़े होंगे शायद. हाफ वेव सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? देखो बेटा, x ऑफ t प्लस और माइनस टी बाई टू अगर माइनस ऑफ एक्स टी हुआ, देन इट इज कॉल्ड हाफ वेव, सॉरी नॉट हाफ वेव, हाफ सिमेट्री, हाफ वेव सिमेट्री. तो ये इट कंसिस्ट ऑफ odd harmonics. It will consist of odd harmonics. Correct? It will consist of odd harmonics. So harmonics अगर आएगा तो यहां पे see, let me write down the expression for flux. It will consist of fundamental plus third harmonic plus fifth harmonic plus seventh harmonic. Okay? तो क्या होगा इसके बाद? फंडामेंटल के वजह से आपका फंडामेंटल EMF आएगा, प्लस थर्ड हार्मोनिक के वजह से थर्ड हार्मोनिक EMF आएगा. सिमिलरली फिफ्थ हार्मोनिक के फिफ्थ सी 5 के चलते क्या आएगा? 5 आएगा प्लस E7. ओके, सो व्हाट विल बी द शेप ऑफ EMF?
द रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होगा, इट विल बी क्या होगा, पी की वेव, इट विल बी पी की वेव। ओके, सो हम क्या किए, यहां पे एक्साइटेशन करंट क्या दिए, साइनोसॉइडल। फ्लक्स वेव क्या आएगा, इट विल बी ट्रापीजॉइडल। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस हिस्टैरिसीस लूप। ये लूप प्रॉपरली सी, ये है मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल। इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इट मस्ट बी फॉलोड। इसको अगर मैग्नेटाइजिंग करंट देंगे तो फ्लक्स वेवफॉर्म ऐसे ही होने वाला है, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे पास सोर्स क्या है, साइनोसॉइडल है, तो मैं साइनोसॉइडल ही अप्लाई कर पाऊंगा। सो अगर साइनोसॉइडल मैग्नेटाइजिंग करंट हम अप्लाई किए तो ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से फ्लक्स वेवफॉर्म क्या आया, यो ट्रापीजॉइडल वेवफॉर्म। फ्लक्स वेवफॉर्म क्या आया, ट्रापीजॉइडल। सो फ्लक्स वेवफॉर्म अगर ट्रापीजॉइडल आया तो ईएमएफ क्या आएगा, आपका पीकी वेव आएगा। अगर ईएमएफ पीकी है, इसका मीनिंग यहां पे हार्मोनिक्स है, इट कंसिस्ट ऑफ हार्मोनिक्स, इट कंसिस्ट ऑफ हार्मोनिक्स। सो इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, नाउ माई क्वेश्चन इज दैट इसका इफेक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोनिक्स, टेल मी क्या होगा। अच्छा ये बताओ, ट्रांसफार्मर में जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा सेकेंडरी साइड में, उसका फायदा क्या है, उसका यूज क्या है। एप्लीकेशन इज वी हैव टू कनेक्ट ए लोड इन द सेकेंडरी साइड, हम आपको लोड को सप्लाई देना है ना, इसीलिए एट द रेटेड वोल्टेज, दैट्स व्हाई आई हैव टू सी, मुझे सेकेंडरी साइड में लोड है, लोड को सप्लाई देना है, लेकिन यहां पे ईएमएफ क्या है, हार्मोनिक्स है, ईएमएफ में बहुत ज्यादा हार्मोनिक्स है। सो इसका इफेक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोनिक्स, टेल मी व्हाट will be the effect of harmonics, what will be the effect of harmonics, so the answer will be क्या होगा, आप काफी बार पढ़ चुके होंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हार्मोनिक्स क्या होगा, क्या होता है। सो आप आंसर दो, what will be the effect of harmonics, please write in the comment section, write it in the comment section। अच्छा दूसरा चीज बताओ, ये हार्मोनिक्स इज रिक्वायर्ड और शुड बी अवॉइडेड, इट शुड बी अवॉइडेड और रिक्वायर्ड, इट शुड बी अवॉइडेड और रिक्वायर्ड। सो मेरे हिसाब से मुझे नहीं चाहिए हार्मोनिक्स, मुझे मेरे पास जितना नॉलेज है, ठीक है, उसके हिसाब से आई डोंट वांट हार्मोनिक्स। ठीक है, अगर मान लो मैं एजम्पशन ही ले लिया कि नहीं हार्मोनिक्स मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, हार्मोनिक्स को अवॉइड करूंगा। ओके, हार्मोनिक्स को अवॉइड करूंगा। कैसे, आप बताओ कैसे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। सो मैक्सिमम स्टूडेंट माइट बी थिंकिंग सर आप फिल्टर क्यों यूज नहीं करते, फिल्टर यूज करेंगे तो हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स चला जाएगा, ओनली फंडामेंटल बचेगा, उसको हम किसको देंगे, लोड साइड को देंगे, लोड को सप्लाई करेंगे। सो योर आंसर मस्ट बी सर आप यूज करिए फिल्टर, आप फिल्टर यूज करिए। नहीं, मुझे फिल्टर कॉन्सेप्ट पता नहीं है, इसीलिए मैं नहीं यूज करूंगा। आई डोंट नो व्हाट इज फिल्टर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर, वो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही यूज करना। ठीक है, आई एम डीलिंग विद ए पावर ट्रांसफार्मर, आई एम डीलिंग अबाउट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर,
सो हियर आई कैनॉट यूज द फिल्टर कंसेप्ट। अगर फिल्टर कंसेप्ट यूज करूंगा भी तो फिल्टर में थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, हमें हर हार्मोनिक्स में कुछ ना कुछ पावर रहेगा। अगर उसको हम निकाल देंगे वही पावर को, तो नेट जो फंडामेंटल में पावर होता है वो बहुत ही कम हो जाएगा। सो इज इट डिजायरेबल? टेल मी, इज इट डिजायरेबल? नॉट एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो यूज नहीं कर सकते, ये बहुत हैवी पावर है, ठीक है, ये बहुत हैवी पावर है। हाँ ठीक है, एचवीडीसी के केस में हम डीसी फिल्टर यूज करते हैं, हम फिल्टर यूज करते हैं, लेकिन इस केस में पर्टिकुलरली हम नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे भी तो पावर लॉसेस होगा, क्योंकि हार्मोनिक्स कंपोनेंट में भी तो पावर होता है, राइट। नाउ what should I do now? Tell me, what should I do now? Let's see, क्या कर सकते हैं हम लोग। हम यहां पे थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। क्या करेंगे? यहां पे रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। विल डू द रिवर्स इंजीनियरिंग। आप लोग भी जरूर करते होंगे। टेल मी, आप लोग कभी रिवर्स इंजीनियरिंग किए हैं? बता दो, आप लोग कभी रिवर्स इंजीनियरिंग किए हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग का एक एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोग अगर मान लो थर्ड ईयर में हो और फाइनल ईयर में हो तो जरूर ये काम आने वाला है, ठीक है। क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग? रिवर्स मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड। मुझे आउटपुट देख के इनपुट चेंज करेंगे। एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग का? आप सेमेस्टर में एक सेमेस्टर है, मान लो आपका 6th सेमेस्टर आपका चल रहा है। अब पूरा स्टार्ट हुआ होगा, सपोज मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपका एग्जाम होने वाला है। आप मान लो कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपका एग्जाम का शेड्यूल आ गया, एग्जाम का शेड्यूल आ भी गया और आप नहीं पढ़े हैं। एंड 2 days बिफोर आप अचानक से जाग गए, अरे हमारा तो एग्जाम होने वाला है, अगर एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे तो हमको प्लेसमेंट में बैठने के लिए चांसेस नहीं मिलेगा। सो आप अचानक से सीरियस मोड में आ गए। उसके बाद क्या होगा? पूरा फ्रस्ट्रेशन होगा 1-2 घंटे का, जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन के साथ आप अपना हॉस्टल का बालकोनी में घूमते रहेंगे। उसके बाद आपका एक जो भी थोड़ा सा स्मार्ट फ्रेंड है वो आपके पास बताएगा कि अरे सुनो, कुछ नहीं करना, लास्ट 5 years क्वेश्चन जो भी लॉन्ग नोट्स आता है, लॉन्ग नोट्स 10 मार्क्स का, उसमें से आप 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या 15 थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स मिला के 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो डेफिनेटली आपका 50-60% मार्क्स तो आ ही जाएगा। 50-60% मार्क्स तो आ ही जाएगा, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे पास करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। लेकिन ट्रांसफार्मर में हम क्या करेंगे? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए अल्टीमेटली साइनोसॉइडल ईएमएफ। तो साइनोसॉइडल ईएमएफ अगर मुझे चाहिए तो अल्टीमेटली ये फ्लक्स क्या होना चाहिए? साइनोसॉइडल होना चाहिए। तो मान लो हम पहले से ही थोड़ा सा हम दिमाग लगा के क्या किए हैं? फ्लक्स को साइनोसॉइडल कर दिए, फ्लक्स को साइनोसॉइडल कर दिए। साइनोसॉइडल हो गया, ओके, 0π2π, दिस इज द फ्लक्स वेवफॉर्म। नाउ ये ग्राफ में हम डालेंगे, यहां पे ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल अप्लाई करेंगे एंड हम ट्रेस करेंगे किसको? आई म्यू। ये है आपका आउटपुट, ये है आपका इनपुट, लेकिन हम पहले आउटपुट से इनपुट को आएंगे तो पता चलेगा कि आई म्यू का वेवफॉर्म क्या होगा। व्हाट वुड बी द शेप ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। तो आप बताइए, सिंपल सा चीज यहां पे जब फ्लक्स जीरो है, जब फ्लक्स जीरो है, आई म्यू क्या है?
इट इज नेगेटिव। आई म्यू क्या है? इट इज नेगेटिव, सो हम नेगेटिव ले लिए, ठीक है, ये नेगेटिव ले लिए, इट इज दैट पॉइंट, ये सी पॉइंट है आपका। एंड जब फ्लक्स एंड जब आई म्यू 0 है तो फ्लक्स क्या है? पॉजिटिव। तो आई म्यू सी, जब आई म्यू 0 है, आई म्यू यहां पे 0 होगा मान लो, तो फ्लक्स क्या आएगा? आपका पॉजिटिव आएगा, ये नेट फ्लक्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है। एंड यहां पे क्या है? सैचुरेशन प्रॉपर्टीज आप पढ़े हैं। सैचुरेशन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? तो आप जितना भी मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज कर देंगे, एक पॉइंट के बाद और फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। एक पॉइंट के बाद एक करंट, एक थ्रेशोल्ड करंट के बाद और फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में ऑलरेडी अलाइन कर चुके होंगे। ओके, सो उसके बाद फिर से आपका फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। सो क्या होगा? यहां पे आई म्यू बहुत ही पीकी वेव नेचर होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा पीकी वेव होगा। ओके, बहुत पीक टाइप का एक बनेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज योर आई म्यू। ओके, सो यहां पे दोनों इंपॉर्टेंट चीज आया। फर्स्ट है फ्लक्स वेव फॉर्म। सी, मैग्नेटाइजिंग करंट वेव फॉर्म फ्लक्स वेव फॉर्म को लीड किया है, करेक्ट और नॉट? सो दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस एंगल ऑफ एडवांसमेंट। हिस्टेरेसिस एंगल ऑफ एडवांसमेंट ये क्यों आया? ड्यू टू द हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व का ऑब्जर्वेशन क्या है? जब फ्लक्स 0 होगा, जब फ्लक्स 0 होगा, आई म्यू नॉट 0। जब आई म्यू 0 होगा, सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स विल बी देयर। सो दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस नॉनलिनियरिटीज। हिस्टेरेसिस नॉनलिनियरिटीज। एंड सेकेंड वन इज आपका यहां पे शेप ऑफ वेवफॉर्म साइनोसोइडल नहीं आया, ये क्या आया? ये पीक्यू वेवफॉर्म आया। एंड इसका रीजन क्या है? दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। That is called saturation nonlinearities. That is called saturation nonlinearities. These are the points. So nonlinearities in transformer means in the core of the transformer. पहला है hysteresis nonlinearities. Hysteresis nonlinearities का इफेक्ट क्या है? The I mu 0 point, see, I mu 0 point leads by the phi 0 point by an angle called phi naught. That is called hysteresis angle of advancement. And another thing, this is a peak waveform. This is a peaky type waveform. This is due to the saturation nonlinearities. Okay. So these are the conclusion. Okay. So finally आप यहां पे बता सकते हैं कि I mu का शेप क्या है? Non-sinusoidal, it is peaky in nature. It is peaky in nature. अच्छा, ये चीज बताओ आप कि is the shape of I mu is symmetrical about x-axis or not? Yes, it is symmetrical about x-axis. So definitely इसका अगर हम फोरियर सीरीज एक्सपांशन करेंगे, फोरियर सीरीज I mu में क्या आएगा? फंडामेंटल प्लस थर्ड हार्मोनिक प्लस फिफ्थ हार्मोनिक प्लस सेवेंथ हार्मोनिक डॉट डॉट। ओके, सो क्या आने वाला है? यही सब आएगा। सो ऑब्वियसली योर मैग्नेटाइजिंग करंट कंसिस्ट ऑफ हार्मोनिक्स, एंड आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे कि लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स हैविंग वेरी हाई एनर्जी, so lower order harmonics means I mu 3, I mu 5. so basically this I mu 3 is called your, क्या बोलते हैं इसको? डोमिनेंट हार्मोनिक्स। This I mu 3 is called your dominant harmonics. So यहां से कंक्लूजन ये आ रहा है कि आपको अगर एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करना है, देन द मैग्नेटाइजिंग करंट मस्ट हैव डोमिनेंट थर्ड हार्मोनिक्स। ओके, दैट मस्ट हैव डोमिनेंट थर्ड हार्मोनिक्स।
that must have dominant third harmonics. Correct? अच्छा, लेकिन यहां पे एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है, आपका माइंड में एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर ठीक है, आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर दिए, ठीक है, आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर दिए, लेकिन आप इनपुट जो देंगे वो तो अवेलेबल होना चाहिए ना, आप जो इनपुट देंगे वो तो अवेलेबल होना चाहिए। तो कब होगा आपका इनपुट अवेलेबल? कब इनपुट अवेलेबल है क्या आपके पास? सी, हम यहां पे सिंपल क्या लगाएंगे, हम यहां पे केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल के हिसाब से शेप ऑफ वेवफॉर्म क्या आएगा? साइनसोइडल आएगा। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? पी की वेवफॉर्म आ रहा है। सो यहां पे थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है चीज। यहां पे आप केवीएल अप्लाई करो, कभी भी पी की आएगा नहीं आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए? पी की चाहिए। मुझे क्या चाहिए? पी की चाहिए। सो यहां पे एक इंटरेस्टिंग थिंग है, एक गॉड गिफ्टेड थिंग टू द ट्रांसफार्मर। शायद ये चीज नहीं होता तो ट्रांसफार्मर ना होता। दिस इज ए गॉड गिफ्ट कॉन्सेप्ट टू द ट्रांसफार्मर। सो क्या है वो गॉड गिफ्ट? लेट्स डिस्कस। है आपका कंसेप्ट, लेट्स डिस्कस। होल्ड ऑन। Write down, source does not supply it has to be created by own. Source does not supply third harmonics, it has to be created by own. It has to be created by own. By some internal process, by some internal process. कैसे? लेट्स डिस्कस। ओ कैसे होगा? लेट्स डिस्कस। बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट है यहाँ पे, आपको इंटरलिंक करना होगा। पहले क्या हुआ? पहले अगर आपका एक्साइटेशन करंट वेवफॉर्म साइनोसोइडल होगा तो ईएमएफ क्या होता था? पीक्यू वेव हो जाता था, विच कंसिस्ट ऑफ हार्मोनिक। लेकिन उसको हम कंट्रोल करने के लिए क्या किए? हम पहले से ही साइनोसोइडल ईएमएफ ले लिए। उसके बाद क्या आया? आपका मैग्नेटाइजिंग करंट पीक्यू वेवफॉर्म आया, विच कंसिस्ट ऑफ हार्मोनिक्स। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये पॉसिबल है। सो कब पॉसिबल है? Source does not supply third harmonics, it has to be created by own. Transformer will create the third harmonics. कैसे? It is an internal process. कैसे? Let's discuss. ये है आपका सप्लाई वोल्टेज VI। यहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ E1, ओके, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ E1 प्लस E3, E1 प्लस E3 मान लो, प्लस E5। आई एम टेकिंग द डोमिनेंट वन, जस्ट E3, ओके, आई एम टेकिंग ओनली द डोमिनेंट वन, E3 हुआ। लेकिन यहां पे क्या होगा? अब देखो, अब यहां पे देखो, सी
E1 क्या होगा हमेशा, E1 इज जस्ट इक्वल टू V1, ओके। E1 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल टू V1। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि E3 यहां पे अगर हम KVL सप्लाई करेंगे देन करंट विल सर्कुलेटेड ड्यू टू E3, एम आई करेक्ट और नॉट। यहां पे V1 एंड E1 कैंसल आउट हो गया, अभी क्या बचेगा, ये लूप में जस्ट E3 बचेगा। अगर E3 अगर बचा है एंड क्लोज्ड पाथ अवेलेबल है देन डेफिनेटली एक करंट फ्लो होगा I3, ओके, एक करंट फ्लो होगा I3। ये I3 क्या करेगा, फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अगर करंट सप्लाई हो करंट फ्लो हो रहा है तो फ्लक्स क्रिएट होगा। सो क्या फ्लक्स क्रिएट होगा, ये अगर I3 है क्या होगा, phi3। सो phi3 का डायरेक्शन क्या होता है, phi3 का डायरेक्शन क्या होता है, इट विल अपोज द कज फ्रॉम लेंस लॉ, इट विल अपोज द कज। सो क्या होगा, इट विल अपोज द थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स व्हिच प्रोड्यूस द थर्ड हार्मोनिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई रिपीट, this phi3 will oppose the third harmonic flux which produce the third harmonic EMF, and ये phi3 को हम क्या बोलते हैं, compensating flux। तो क्या होगा यहां पे, phi3 कैंसल आउट। सी यहां पे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, पहले E3 आएगा, E3 के चलते I-3 आएगा, I-3 के चलते phi3 आएगा। पहले क्या था आपका, phi3 था। सो ये phi3 को ये अपोज करेगा, वाई, बिकॉज योर लेंस लॉ, एम आई करेक्ट, बिकॉज ऑफ योर लेंस लॉ इट विल अपोज द कज। सो हियर कैंसल आउट योर थर्ड हार्मोनिक, कैंसल आउट हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू द कंपेंसेटिंग फ्लक्स। नाउ only flux remaining inside the core of the transformer is fundamental, so happily we'll be getting a sinusoidal induced EMF both in the primary and in the secondary side। क्योंकि कोर में है ना, ये सारी चीज कोर में हो रहा है तो ऑब्वियसली सेकेंडरी साइड में भी जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी ओनली द साइनोसोइडल। एम आई करेक्ट और नॉट? बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट, ओके। सो our goal is achieved now, we got a sinusoidal induced EMF, ओके। लेकिन यहां इसका कुछ प्री रिक्विसाइट कंडीशन होता है, वो क्या है, यहां पे एक क्लोज लूप होना चाहिए, यहां पे एक क्लोज लूप होना चाहिए, अदरवाइज नॉट, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज, अगर क्लोज लूप नहीं होता तो पॉसिबल नहीं होता, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। वो हमेशा वो हमेशा 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए पॉसिबल है। वो कंडीशन कब आएगा, फॉर योर 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, सपोज कंसिडर ए 3 फेज, नहीं, लेट्स डिस्कस द नेचर ऑफ हार्मोनिक्स। See, in case of 3-phase circuit, in case of a 3-phase circuit, the instantaneous sum of current of 3 phases is how much? IA plus IB plus IC is 0. This is for an electrical circuit. But for a magnetic circuit ये क्या हो जाएगा? phi A plus phi B plus phi C is equal to 0. Okay. So fundamental, see, these 3 phase flux having
For a balanced condition, it is having equal magnitude, but they are placed 120 degree apart with each other. Okay, that's why phi A, phi B, phi C is equal to 0. Now tell me, for suppose the phase displacement are 0, 120 degree, 240 degree, यही होता है. ये है आपका फंडामेंटल के लिए. थर्ड हार्मोनिक के लिए क्या होगा, इसमें हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे. जीरो, ये क्या हो जाएगा 360. सो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा. नाउ फिफ्थ के केस में क्या होगा, 0 इंटू 5, 120 इंटू 5, 240 इंटू 5. सो ये क्या हो जाएगा 120 इंटू 5, 12 5 जा 600. 600 मतलब क्या होता है आपका 240 डिग्री. 0 240 एंड 245 जा 24 5 जा क्या होता है 120 राइट, 1200 राइट. सो ये क्या हो जाएगा 1200 मतलब 360 इंटू 3, 36 3 जा 36 3 जा क्या होगा, टेल मी. 360 3 टाइम्स 8 980 करेक्ट. सो 1200 just a minute, 24 5 जा to 120, 1200 डिग्री and 36 3 जा is how much, ये है आपका 1080 डिग्री. तो क्या बचा है यहाँ पे 120 डिग्री. So you can see here your first, suppose first is positive sequence, फिफ्थ क्या हो जाएगा 0 240 150 मीनिंग ये नेगेटिव सीक्वेंस. तो फर्स्ट फंडामेंटल एंड फिफ्थ हार्मोनिक विल बी रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सेवेंथ हार्मोनिक क्या होगा यू कैन चेक इट. सेवेंथ हार्मोनिक में 7 7 मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 240 मीनिंग फर्स्ट एंड सेवेंथ विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन. Fifth harmonic will be in opposite direction. So basically we are having two types of harmonic. One is पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट करेगा, सेकंड इज नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट करेगा. पॉजिटिव डायरेक्शन में कब रोटेट करेगा 6n+1 में, 6n-1 में नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट करेगा. n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर. सो जब जीरो है n तो क्या होगा ये 1 आ जाएगा, 1 इज पॉजिटिव. जब 1 होगा ये 7 होगा पॉजिटिव. जब 1 होगा ये नेगेटिव, जब 1 होगा ये फिफ्थ होगा, इसका रोटेशन क्या होगा नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा. मान लो पॉजिटिव को हम क्लॉकवाइज लेंगे एंड नेगेटिव क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. सो टू टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ हार्मोनिक्स आर देयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थर्ड हार्मोनिक. सो आप बताओ यहां पे सम ऑफ इंस्टेंटेनियस फ्लक्स क्या था 0 था. फिफ्थ में सम ऑफ इंस्टेंटेनियस फ्लक्स क्या रहेगा 0 रहेगा. सेवेंथ में सम ऑफ इंस्टेंटेनियस फ्लक्स क्या रहेगा 0 रहेगा. सम ऑफ इंस्टेंटेनियस फ्लक्स क्या रहेगा 0 रहेगा. लेकिन थर्ड में सम ऑफ इंस्टेंटेनियस फ्लक्स क्या होगा, इट विल बी नॉट 0. ये कोफेजल है ना, कोफेजल अगर है इसका एक नेट वैल्यू आएगा फाई A3 प्लस फाई B3 प्लस फाई C3, एक नॉन जीरो नंबर आएगा. सो नॉन जीरो नंबर अगर आएगा सो यहां पे एक प्रॉब्लम आ गया. यहां पे थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स मस्ट बी 0, लेकिन यहां पे थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है. यहां पे थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है. इसका मीनिंग क्या है, इसको नॉलिफाई करना है. नॉलिफाई हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द कंपेंसेटिंग फ्लक्स. कंपेंसेटिंग वाइंडिंग नहीं है, बाय यूजिंग द कंपेंसेटिंग फ्लक्स. सो कंपेंसेटिंग फ्लक्स के लिए मुझे क्या चाहिए, I μ3 चाहिए. वो मैग्नेटाइजिंग करंट ही
कंपेंसेट करेगा किसको, थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स को कंपेंसेट करेगा। सो मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, आई म्यू थ्री। सो आई म्यू थ्री कब सी आई म्यू सी फाइव, ये थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स अगर कोफेजल है तो थर्ड हार्मोनिक करंट क्या होगा, वो भी कोफेजल होगा। एंड ये कब पॉसिबल होगा, जब इसके लिए एक पाथ हो, जब करंट के लिए हमेशा पाथ चाहिए, अदरवाइज कैसे फ्लो करेगा। सो जब आपके पास एक पाथ मिलेगा तब जाके ये, हाँ अगर पाथ मिलेगा तब जाके कंपेंसेटिंग फ्लक्स सी आई म्यू थ्री सर्कुलेट करेगा, आई म्यू थ्री फ्लो होगा, आई म्यू थ्री अगर फ्लो होगा कंपेंसेटिंग फ्लक्स आएगा, एंड वही कंपेंसेटिंग फ्लक्स क्या करेगा, ईएमएफ को साइनोसॉइडल बनाएगा। दिस इज द कंसेप्ट। लेकिन अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, ए पाथ टू सर्कुलेट थर्ड हार्मोनिक करंट। राइट डाउन, ए पाथ टू सर्कुलेट थर्ड हार्मोनिक्स करंट। ठीक है, सो दिस इज द कंक्लूजन। लेकिन आपके पास एक होमवर्क है, आपको बताना है कि कौन सा टाइप सी थ्री फेज के लिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कनेक्शन अवेलेबल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कनेक्शन अवेलेबल फॉर थ्री फेज सर्किट। You must be knowing the types of connections are star or delta. So the question is, which connection offers a path to circulate third harmonic current? Which connection offers a path to circulate third harmonic current? That is my question. That's my question. Whether star connection or delta connection, ये चीज आपको बताना है in the comment section. So ultimately नॉन लीनियरिटीज इन ट्रांसफार्मर में हम क्या देखें, ये लूप को, हिस्टैरिसीस लूप को हम देखें, क्योंकि प्रीवियसली आपका BS कब क्या आ रहा था, वो लीनियर आ रहा था, लेकिन अभी क्या है, अभी ये नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल केस में ये नॉन लीनियर होगा, एंड नॉन लीनियर के वजह से हिस्टैरिसीस एंड ईडी करंट हिस्टैरिसीस एंड सैचुरेशन नॉन लीनियरिटीज है, उसी के लिए आपका मैग्नेटाइजिंग करंट का वेवफॉर्म क्या होगा, पीकी वेवफॉर्म होगा। लेकिन उसको वो हम नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हाँ वो हमको पीकी चाहिए। पीकी अगर होगा देन फ्लक्स विल बी साइनोसॉइडल, ईएमएफ विल बी साइनोसॉइडल। लेकिन थ्री फेज कनेक्शन में मुझे क्या चाहिए, ए क्लोज पाथ टू सर्कुलेट थर्ड हार्मोनिक्स करंट। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, डेल्टा में क्लोज्ड पाथ है या स्टार में क्लोज्ड पाथ है, दैट यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द नॉन लीनियरिटीज इन ट्रांसफार्मर, एंड इतना ही एनफ है फॉर ESC पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड ऑल्सो इन द लाइव क्विज सेशन विल डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। एंड अनदर थिंग, आप जेनिक लाइव ऐप डाउनलोड करके वहीं से बहुत सारे कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि लाइव ऐप में ही हमारा जितने भी पेड कोर्स है, लाइक उड़ान है, प्रहार का कोर्स है फॉर SSC JEE, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC एग्जाम के लिए आपका उड़ान का कोर्स है, वो भी जेनिक लाइव ऐप में ही चलेगा। एंड 2022-2023 गेट एग्जाम के लिए जो भी लाइव सेशन क्लासरूम प्रोग्राम है हमारा, वो भी आपका जेनिक लाइव ऐप में ही अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।